We are going to study magnetic field on a moving charge. We have already a little bit knowledge of what is magnetic force, what is magnetic field, what is magnetism, how magnetic force is uh, represented in the form of magnetic field lines, what is the strength of the magnetic field, how the magnetism is produced inside the material, what are magnetic materials, what are the types of magnetic materials. Now if we are having a magnet, we are having a moving charge and a permanent bar magnet, then what will be the force, magnetic force applied on that moving charge by the magnet? In order to understand this, we have first performed a little bit of experiment, but before performing that experiment, we have to check the region under consideration where we are going to perform our experiment. That region must not have any electric field present in it. If there is an electric field present, then that will definitely provide some force of attraction or repulsion that will also disturb, or that will also add up into the amount of force acting on the charged particle. So the total force acting on that charged particle will not be entirely magnetic force. That force will be the sum of magnetic force and electric force. So for the calculation of magnetic force only, first we have to take the region of experimentation as such a region where there is no electric force or present already. For checking the absence of the electric field, we will just place a test charge in that region. The test charge must be at rest, and we will analyze if the test charge starts moving. As we know that electric field is an accelerating force, it moves charged particles from one point to another point. If we place a charged particle at rest in any region of space, and then the charged particle stays at rest, it does not move from its position, then we can say the charged particle is there, the charged particle is at rest and there is no electric force surrounding that particle. Now, if the charged particle we have placed, the test charge we have placed in the region of the space under consideration, if the charged particle doesn't move, it means there is no electric force present at electric field present in that region of the space. Then we will start our experiment in order to quantitatively measure the value of magnetic force, or we can say, in other words, we can say for the derivation of the formula for the magnetic force on the moving charge particles. So first we have checked the region of space in which we are performing our experiment has no electric field in it. Now, for the next step, we will bring a permanent bar magnet in that region of the space. We select a point P near near that bar magnet. As you can clearly see it in the diagram, that we have a bar magnet and we have a point P near that bar magnet. Now we have a device. That device has the ability to fire charges, and that device has the ability to fire charges, and also the device can fire charges at different velocities. At different velocities means कि velocity की different values भी हो सकती हैं. अगर हम particles
फायर करना चाह रहे हैं ऑन द थ्रू द पॉइंट पी, हम पॉइंट पी के थ्रू अपने मैग्नेट को अपने चार्ज पार्टिकल को फायर करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो डिवाइस है उस डिवाइस में दो एबिलिटीज़ हैं। पहली एबिलिटी ये है कि वो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स को फायर करेगी एट डिफरेंट वेलोसिटीज़। You can fix the velocity, but you can also vary the velocities, and also the device can fire the particles in different directions. हर डायरेक्शन में आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो फायर किए जा सकते हैं with the help of this device. This experimental setup was used for multiple observations. This experiment was repeated with two variations. First variation was by varying the magnitude of velocity of the charged particles, and the second variation was by varying the direction of motion of the charged particles. And certain observations were made. For the first portion of the experiment, variation of the direction of motion was created, and for that multiple observations were made. For that first observation was, if we fire a it was first deduction was made, and the deduction was that if the if the charged particles are fired by varying the direction of motion, it was observed that magnetic force and velocity are perpendicular to each other. अच्छा जी, अब क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि आपके पास ऑब्जर्वेशन क्रिएट की गई कि आपके पास अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को एट डिफरेंट एंगल्स फायर कर रहे हैं, लेकिन ये कंपल्शन है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है इट मस्ट एंटर पॉइंट पी। अगर ये पॉइंट पी के अंदर से गुजरता है तो आपके पास डिफरेंट एंगल्स पे आपने चार्ज पार्टिकल्स मूव किए फायर। We can say कि एक चार्ज पार्टिकल आया फ्रॉम दिस डायरेक्शन, वन चार्ज पार्टिकल्स केम फॉर दिस डायरेक्शन, वन पार्टिकल एट अ टाइम फायर किया गया। ठीक है जी, ये नहीं किया गया कि सारे के सारे डायरेक्शंस में से पार्टिकल्स आ रहे हैं, वन पार्टिकल एट अ टाइम फायर किया गया। सपोज़ पहले हमने इस डायरेक्शन से फायर किया, फिर इस डायरेक्शन से फायर किया, फिर हमने इस डायरेक्शन से पार्टिकल को फायर किया, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स थी और जो फोर्स जो प्रोवाइड, अब कीपिंग द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, हमने यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया है और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट रखा है। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई कि जो चार्ज पार्टिकल्स की जो फोर्स थी एफ, जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा था ये बार मैग्नेट, और ये जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल थी, बोथ दीज थिंग्स वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर आए थे, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा था वो 90 का बन रहा था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया था और थोड़ी सी बात की गई थी। फिर कहते हैं कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि अगर चार्ज पार्टिकल आपने एक फायर किया है एंड दैट चार्ज पार्टिकल इज़ फॉलोइंग अ पाथ। कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? ये जो डॉटेड लाइन का पाथ है, ये जब डॉटेड लाइन का पाथ फॉलो करता था चार्ज पार्टिकल, तो इस वक्त आपके पास जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाती थी ज़ीरो। फर्स्ट assumption की गई, your first assumption was first assumption बाद was force is perpendicular to, first assumption was force is perpendicular to velocity. Second assumption was if the charged particle follows the dotted line, then
velocity has a value and that value is equal to 0. ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि अगर हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल को किसी भी और एंगल पे फायर किया जाता और वो पी के अंदर से गुजरता, तो ऐसी सूरत में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो फंक्शन थी किस चीज़ का? वो फंक्शन थी साइन ऑफ फाई का। अब ये जो साइन ऑफ फाई है हमारे पास, ये बेसिकली जैसे जैसे एंगल बदलता था वैसे वैसे आपकी फाई की वैल्यू बदलती थी और टोटल आपकी वेलोसिटी की वैल्यूज़ बदल जाती थी। और वेलोसिटी की वैल्यू बदलने से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि ये मैग्नेट उस चार्ज पार्टिकल पर लगा रहा था, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती थी। अच्छा जी, अब ये आपके पास क्या हुआ? नाउ वी नो कि हमारे पास क्या हुआ, पार्टिकल की ट्राइजेक्ट्री चेंज करने से या पार्टिकल का पाथ चेंज करने से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है। और वेलोसिटी की वैल्यू जब इफ़ेक्ट होती थी तो बेसिकली ये किस वजह से इफ़ेक्ट होती थी, ये जो फोर्स आपके पास बाहर मैग्नेट इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, इस वजह से ये इफ़ेक्ट होती थी। सेकेंड एजम्पशन वॉज मेड, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन में ये क्या उसने बात की कि अगर हमारे पास, फिर उसने बात की कि अगर आपके पास एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एंड द मूविंग पार्टिकल फॉलोज अ पाथ, और वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? परपेंडिकुलर टू दिस डॉटेड लाइन, यानी कि पी जो है वो एग्जैक्टली यहाँ से गुजरेगा, परपेंडिकुलर पाथ फॉलो करता है टू दिस डॉटेड लाइन। तो उस वक्त जो है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो ऐसी सूरत में आपके पास वेलोसिटी जो है वो उसकी भी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू आएगी। Then the next observations were made by varying the magnitude of velocity. अब क्या है यहाँ पर कि उसने डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी लिए, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल को चेंज नहीं किया। जब डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल को चेंज नहीं किया तो इट वाज ऑब्जर्व कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑब्जर्व किया गया, पहले वेलोसिटी की वैल्यू को 5 मीटर्स पर सेकेंड रखा गया, फॉर लेट्स सपोज इट वाज 5 मीटर्स पर सेकेंड, फिर इसको 10 मीटर्स पर सेकेंड पर रखा गया, फिर इसको 20 मीटर्स पर सेकेंड पर रखा गया। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जिस तरह आपके पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ रही थी, उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। तो इट वाज डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस assumption दैट कि magnetic force and the magnitude of velocity both are perpendicular to each other. After that, it was observed that the charge particle, the magnitude of the test charge, we can vary the magnitude of the test charge in this experiment. तो अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड वेरी करते हैं हम, तो ऐसी सूरत में जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई अपीयर हो रही थी हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी हो रहा था। अगर आपका पार्टिकल का के ऊपर पहले 2 कूलम्स चार्ज था तो आपके पास फोर्स की वैल्यू लेट्स सपोज 1 न्यूटन आ रही थी। आपने टेस्ट चार्ज के साइज़ को टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज की अमाउंट को डबल कर दिया, चार्ज की अमाउंट 2 की बजाय अब अगर 4 हो गई है, अब तो आप इट वाज ऑब्जर्व्ड कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स थी उसका मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया है एंड दैट बिकेम फ्रॉम 1 to 2। तो इससे ये असम्पशन की गई कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब तक की जो असम्पशंस की गई वो सारी की सारी असम्पशंस हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट असम्पशन
magnetic force is perpendicular to V. Then second assumption was made, और उस assumption में उसने क्या लिखा था कि velocity is equal to 0 if we follow the dashed line. फिर next क्या है जी आपके पास, force, magnetic force FB was maximum. कब मैक्सिमम थी ये फोर्स, जब आपके पास जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा था, वो मूव कर रहा था एफ बी इज इक्वल टू मैक्सिमम. और ये मैक्सिमम कब थी, जब पार्टिकल मूव कर रहा था परपेंडिकुलर टू द डैश्ड लाइन. अच्छा जी, उसके बाद क्या इजम्पशन की गई, उसके बाद ये इजम्पशन की गई कि आपके पास जो v है, जब हमने अपने मैग्नीट्यूड को चेंज किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज किया, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड एफ बी. अब ये these all are vectors, force is a vector, v is a vector. तो नेक्स्ट की assumption की गई कि अगर आपके पास पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही थी. तो दीज वर द ऑल assumptions मेड when फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स, जिनको मैंने इन द मैथमेटिकल फॉर्म आपको यहाँ लिख कर दिखा दिया है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या बात हुई, नेक्स्ट कहते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस तो सारी कर ली गई. अब इन ऑब्जर्वेशंस को करने के बाद उसने क्या किया, आपके पार्टिकल्स, आपके लिए इस पार्टिकल पर, एक सर्टेन पार्टिकल जो कि इस पॉइंट पी से गुजर रहा था, इस पार्टिकल पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसकी डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की. और उसके लिए पहले तो उसने रिलेशन फाइनलाइज किया कि वो रिलेशन क्या है. तो उस रिलेशन के लिए ये सारी की सारी एजम्पशंस को एक इक्वेशन में कैलकुलेट कर लिया और वो इक्वेशन जो थी एक इक्वेशन में लिख लिया. और वो इक्वेशन बनी आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है दैट विल बिकम इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एट मैक्सिमम ओवर चार्ज इनटू वी. अच्छा, अगर हम यहाँ से अपनी मैग्नेटिक फ़ोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फ़ोर्स की वैल्यू निकालेंगे एट एनी सर्टेन एंगल. आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पर अगर गुज़र रहा था चार्ज पार्टिकल थ्रू पॉइंट पी, तो मैग्नेटिक फ़ोर्स की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी. मैग्नेटिक फ़ोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास एफ बी इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि ये जो f है, ये v है और ये b है, ऑल दीज आर वेक्टर्स. तो अगर ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं तो हम लोग इस इक्वेशन को क्रॉस इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर लिख सकते हैं, टू वेक्टर्स लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास आपको याद होगा हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पढ़ा हुआ है. लेट सपोज a क्रॉस b है, तो ये a क्रॉस b को हम लोग लिख सकते हैं a b साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, या फिर हम साइन ऑफ फाई भी लिख सकते हैं इसको. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसी तरह यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये भी हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है बेसिकली v इज़ द वेक्टर फर्स्ट वेक्टर, b इज़ द सेकेंड वेक्टर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स पड़े हुए हैं और साथ में ये आपके पास एंगल पड़ा हुआ है. q इज़ अ कांस्टेंट इज़ अ स्केलर, इस स्केलर को हम इसके साथ एज इट इज़ लिख सकते हैं. तो ये वाली सेकेंड वाली जो टर्म है हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, v क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया. और q चूँकि मैग्नीट्यूड में था इज़ अ स्केलर, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये इसके साथ सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आपके मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, बी की डायरेक्शन अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बाय द हेल्प ऑफ द वेक्टर वी. अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन बतानी है तो वी हैव ऑलरेडी नोन कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है उस क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स में हमने ऑलरेडी ये बात हमारे नॉलेज में है कि
अगर आपके पास दो वेक्टर्स मौजूद हैं और उन मौजूद वेक्टर्स के अंदर उन मौजूद वेक्टर्स के दरमियान एक सर्टेन एंगल बन रहा है, हम हमेशा स्मॉलर एंगल को फॉलो करते हैं इन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। आपको राइट हैंड रूल भी याद होगा। हम लोग सिंपल क्या कहते थे कि दो वेक्टर्स हैं अगर आपके पास, फर्स्ट इज़ वेक्टर ए and the second vector is vector b. So we are now going to calculate the direction of the resultant vector. तो इन दोनों की resultant vector की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करते थे, सिंपली अपने राइट हैंड को लेते थे और जो अपनी फिंगर्स को कर्ल करते थे थ्रू द स्मॉलेस्ट एंगल फ्रॉम वेक्टर ए टू बी, और जो थंब था आपके पास, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम पिछली इक्वेशन पर जाते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, आपके पास यहाँ पर फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो अगर आपको आपके वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है, वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम है और आपको बी की डायरेक्शन मालूम है, तो आपके पास यहाँ पर रिजल्टेंट एफ बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में थोड़ी सी करेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एफ बी लिखना था, यहाँ खाली डायरेक्शन ऑफ बी लिख दिया गया है। तो ये करेक्ट कर लीजिए कि अगर आपके पास वी और बी की डायरेक्शंस मौजूद हैं तो आप एफ बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ऊपर भी थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ये इसको आप काट दीजिएगा और यहाँ पर आपके पास ये फोर्स का वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि आपकी इस मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स क्या हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो जो मेन ऐसा यूनिट है दैट इज़ टेस्ला। टेस्ला इज़ डिफाइंड बाय द फार्मूला। टेस्ला का सिंबल जो है वो कैपिटल टी होता है और जो टेस्ला का फार्मूला है वो यहाँ पे आपको स्लाइड्स में यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज़ 1 न्यूटन। इफ़ 1 न्यूटन फोर्स is applied on a charged particle by the magnet by the source, and that charged particle moves one meter distance in 1 second, then the particle have a magnetic field of 1 Tesla. अच्छा जी, इसी टेस्ला को डिफ़ाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एम्पेयर मीटर करंट के यूनिट्स के अंदर। तो ये आपके पास आ गया है इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। फिर टेस्ला ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपनी मेजरमेंट्स जो हैं मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा टेस्ला बड़े यूनिट्स के अंदर ही मेजर करें। टेस्ला इज़ अ बिगर यूनिट, तो ज़रूरी नहीं है हम ऐसा यूनिट्स के अंदर ही हमेशा इसको करें। हम इसको जो है वो नॉन एसआई यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं जो कि स्मॉलर यूनिट्स हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए जो स्मॉलर यूनिट है वो आपके पास आ जाता है गॉज, और ये गॉज जो है वो तकरीबन 10⁴ गॉजेस मिलते हैं तो आपके पास 1 टेस्ला बनता है।